اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر بحیرہ قزوین کے کنارے کنارے دونوں گھوڑوں کو آگے آگے ہانکتا ہوا جا رہا تھا۔ چند میل آگے جا کر اسے ایک سرائے دکھائی دی۔ وہ سرائے میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے گروسو اور بروک کے گھوڑوں کو بیچ کر رقم حاصل کر لی۔ پھر اس نے اپنا رخ دائیں جانب موڑا۔ دریائے ارس کے کنارے گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کا وہ رخ کر رہا تھا۔ ایک روز جبکہ شام خوب گہری ہو رہی تھی، وہ قصبک شہر میں ملکہ رسودان کے محل سرا کے صدر دروازے پر نمودار ہوا۔ دروازے کے قریب جب وہ اپنے گھوڑے سے اترا تو دروازے کے محافظوں میں سے ایک اس کی طرف آیا۔ شاید وہ لوگ عمیر بن نصر کو جانتے تھے، اس لیے کہ وہ گرجستان میں سامان تجارت کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ وہ محافظ قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن نصر، کیا بات ہے؟ آج تم اکیلے ہی محل سرا کی طرف آئے ہو؟ اس سے پہلے تم اپنے ساتھی تاجروں کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور پھر چند روز پہلے ہی تم یہاں سے گئے ہو۔ تم اکیلے ہو، الجھے بھی ہو، خیریت تو ہے؟ عمیر بن نصر نے کچھ سوچا، پھر بات بناتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں جب یہاں سے دریائے وولگا کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا تھا، تب میں یہاں ایک چیز بھول گیا تھا۔ اس سلسلے میں شہزادی تھمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اس نقصان کا ازالہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی بھر کے لیے قلاش ہو کر رہ جاؤں گا۔ اس لیے تم مجھ پر ایک مہربانی کرو، تھمر تک میرا پیغام بھجواؤ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ محافظ مان گیا، کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، میں محل سرائے کے کسی خادم کے ذریعے سے تمہارا پیغام تھمر تک بھجواتا ہوں۔ جو وہ جواب دیتی ہے تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ عمیر اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے وہاں انتظار کرنے لگا جبکہ وہ شخص محل سرا کے اندر چلا گیا تھا۔ عمیر بن نصر کا پیغام اس نے اس شخص تک پہنچایا جو تھمر کی خدمت پر مامور تھا۔ یہ پیغام سن کر اس شخص نے تھمر کی خوابگاہ پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں اندر سے باریک کھنکتی ہوئی آواز آئی اور دستک دینے والے کو اس نے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس پر وہ خادم دروازہ کھول کر اندر گیا۔ تھمر اس وقت اپنے زرق برق لباس میں ایک ریشمی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سرمدی خوابوں کی جنت درخشاں، ایام کی یادوں دلکش داستانوں جیسی حسین، ہنسی کی مدھر تانوں، کومل سپنوں کی بارات اور رنگوں کی جھلمل جیسی پرجمال تھی۔ اس کے خوبصورت سے گلاب ہونٹوں پر شبنم کے لبوں پر ناچتی کرنوں جیسی دائمی مسکراہٹ تھی، اور اس کے چہرے پر آسودگی اور خوشیوں کا ایک ایسا ملا جلا طلسم تھا۔ مجموعی طور پر تھمر کا جسم اور خوبصورتی سندلی تحریروں اور دیو مالائی قصوں جیسے تھے۔ جب خادم اندر گیا تو تھمر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے اندر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ کہنے لگا، خانم، تھوڑی دیر پہلے صدر دروازے کا ایک خادم اندر آیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان نام جس کا عمیر بن نصر ہے اور جو اکثر و بیشتر مال تجارت کے ساتھ یہاں آتا ہے، وہ یہاں تک کہتے کہتے اس خادم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تھمر بڑی بے چینی سے بول اٹھی، کیا ہوا عمیر بن نصر کو؟ وہ خادم جواب میں پھر بول اٹھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عمیر بن نصر ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہتا ہے اور اس وقت محل کے صدر دروازے پر کھڑا ہے۔ اس پر تھمر کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے خادم پر برس پڑی۔ ابن نصر کو کس نے محل کے صدر دروازے پر روکا ہے؟ اسے کیوں نہیں عزت اور احترام کے ساتھ اندر لایا گیا؟ ابھی اور اسی وقت اندر جاؤ اور اسے لے کر میری خوابگاہ میں آؤ۔ اس پر وہ خادم وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر جب تھمر کے کمرے میں داخل ہوا تو تھمر نے جو ہی عمیر کو دیکھا وہ بھاگی۔ بڑی چاہت اور محبت میں آگے بڑھ کر اس نے عمیر بن نصر کے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے اسے پہلو میں ایک نشست پر بٹھایا، پھر بڑی چاہت اور محبت میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی، عمیر، تم اتنی جلدی لوٹ آئے، خیریت تو ہے؟ اس پر عمیر سنجیدہ سے لہجے میں کہنے لگا، تھمر، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بہت طویل گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں نہیں۔ پہلے میں تم سے یہ کہوں کہ یہاں سے بھاگ چلو۔ تھمر نے پریشانی کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگی، یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ پہلے تو تم نے ایسی گفتگو کبھی نہیں کی۔ خدشات بھری آواز میں عمیر کہنے لگا، تھمر، کچھ قبرصی تیغزنوں نے چنگیز خان کے پوتے باتو خان کے سامنے تمہاری ماں روسودان اور تمہارے حسن و جمال کی بے حد تعریف کی تھی۔ اس کے جواب میں باتو خان نے تمہاری ماں کو اپنے حرم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس کا بیٹا سرتاق تمہاری چاہت میں گرفتار ہو بیٹھا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ باتوں نے 2 ہرکارے بھیج کر تمہاری ماں کو اپنے خیموں کے شہر میں طلب کیا تھا، لیکن تمہاری ماں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب باتوں نے یہ کیا ہے کہ تمہاری ماں نے جو اپنے بھتیجے کو اندھے کنویں میں قید کیا تھا، باتوں نے اپنے کچھ منگولوں کو بھیجا جو اسے وہاں سے نکال کر لے گئے۔ اب باتوں نے داؤد کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ داؤد آندھی اور طوفان کی طرح قصبک شہر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। वो कसबक पर हमलावर होकर हर सूरत में कोशिश करेगा कि तुम दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके दरिया वोल्गा के किनारे बातों की तरफ भिजवा दे और खुद गर्जिस्तान का हुक्मरान बन बैठे। थिमर, कबल इसके कि तुम्हारा मामूजाद भाई अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंचे, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ निकल भागो, वरना याद रखना उम्र भर पछताओगी। थिमर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, फिर कहने लगी, मुझे पछताने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो, तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से चाहा है और तुम्हारे हर फैसले से इत्तफाक भी करूंगी। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। इस पर उमैर कहने लगा, अगर ऐसा है तो मैं अस्तबल की तरफ जाता हूँ। मेरा घोड़ा पहले ही तैयार है। मैं तुम्हारे लिए भी एक घोड़ा तैयार करता हूँ। तुम अपना जरूरी सामान लेकर नीचे आओ। मुमकिन हो तो मर्दाना लिबास पहनकर नीचे आना। इस तरह तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा और हम दोनों यहाँ से आसानी से भाग निकलेंगे। इस पर थिमर बड़ी चाहत का इजहार करके कहने लगी, उमैर, तुम फिक्र ना करो, तुम अस्तबल में जाकर मेरा इंतजार करो। मैं अभी अपना जरूरी सामान समेटकर और मर्दाना लिबास पहनकर आती हूँ। थिमर का यह जवाब सुनकर उमैर बिन नसर खुश हो गया था। फिर वो थिमर की ख्वाबगाह से निकला और महल के अस्तबल का रुख कर रहा था। अस्तबल में जाकर उमैर ने थिमर के लिए भी एक घोड़ा तैयार कर दिया था। फिर वो वहां उसका इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर वहां रुकना ना पड़ा, इसलिए कि थिमर जल्द ही अपनी ख्वाबगाह से निकलकर वहां आई। वो मर्दाना जंगी लिबास में थी। अपने चेहरे का अक्सर हिस्सा उसने खूब ढांप रखा था और चमड़े की एक बहुत बड़ी मुंह बंद खुरजीन उसने अपने हाथों में उठा रखी थी। थिमर जो ही अस्तबल में दाखिल हुई, उमैर ने आगे बढ़कर चमड़े की खुरजीन ले ली और अपने घोड़े की जीन से बांध ली। फिर वो थिमर को मुखातिब करके कहने लगा, अब हम दोनों को वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ इस मौके पर तुम मुझसे बहुत से सवाल करोगी, लेकिन ये सवाल करने का वक्त नहीं है। खामोशी से इस महल से निकलकर इस महफूज जगह भाग चलें जहाँ का मैंने तुमसे पहले तायन कर रखा है। थिमर ने जवाब में कुछ न कहा। फिर वो उमैर के कहने पर अपने घोड़े पर सवार हुई। खुद उमैर भी अपने घोड़े पर हो बैठा। महल के सदर दरवाजे पर आए। फिर थिमर मुहाफिजों के सरखेल को मुखातिब करके कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए एक इंतहाई अहम और ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रही हूँ। जल्द लौट कर आऊँगी। इस दौरान अगर मेरी माँ पूछे तो उससे कहना कि फिक्रमंद न हो। इसके साथ ही थिमर और उमैर अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए आगे बढ़ गए थे। कसबक से निकलकर अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए वो दरियाए अरस के किनारे आए और फिर बड़ी तेजी से अपनी मंजिल का रुख कर रहे थे। खैमों के शहर सराय बातों में एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सरताक विलियम के खैमे में दाखिल हुआ। राहिब विलियम सर्दी से बचने के लिए आग के अंगारों के पास बैठा हुआ था और दोनों कब्रसी तेगजन, जिनके नाम बारबर्क और सरजीस थे, वो भी राहिब विलियम के दाएं बाएं बैठे हुए थे। सरताक जब खैमे में दाखिल हुआ तो उसके पीछे पीछे दो मुसल्ला मंगोल भी दाखिल हुए, जिन्होंने अपने आप को बारिश और सर्दी से बचाने के लिए कीमती समूर में छुपा रखा था। जो ही सरताक खैमे में दाखिल हुआ, विलियम और दोनों तेगजनों ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। फिर विलियम ने सरताक को अपने पास बिठाया, जबकि दोनों मुसल्ला मंगोल खैमे के वस्त में आन खड़े हुए थे। इस मौके पर सरताक ने राहिब विलियम को मुखातिब किया, मुकद्दस राहिब, मैंने तुम्हारे खैमे के इर्द गिर्द अपने आदमी खड़े कर दिए ताकि मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू कोई और न सुन सके। मैंने अपनी बहन बख्ताई को राह रास्त पर लाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसने बड़ी हद धर्मी और जिद का मुजाहिरा किया है। उसने इस्लाम तर्क करके नसरानियत इख्तियार करने से इनकार कर दिया है। इन हालात को सामने रखते हुए मैंने उसे कत्ल करने का इरादा कर लिया है। ये दोनों मंगोल जो खैमे में खड़े हैं, इनके जिम्मे मैंने बख्ताई के कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों मेरे ऐसे काबिल एतबार आदमी हैं कि बख्ताई को कत्ल करने के बाद इसकी खबर की हवा तक नहीं उड़ने देंगे। राहिब विलियम ने अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। बख्ताई का खात्मा करने के बाद हम बरकाई खान के खिलाफ हरकत में आ सकेंगे। अभी ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर बरकाई खान जिंदा रहता है तो तुम्हारे बाप के बाद वही इन इलाकों का खान होगा। अगर वो खाकान बनता है तो फिर ईसाइयत का फ़रोग़ इन इलाकों में बंद हो जाएगा। दुनिया के नक्शे में इन इलाकों में मुसलमानों की एक और सल्तनत नमूदार हो जाएगी, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। विलियम की इस गुफ्तगू के जवाब में सरताज कहने लगा, तुम परेशान मत हो, बख्ताई के बाद बरकाई का भी नंबर आएगा, इसलिए कि बरकाई को रास्ते से हटाने के बाद ही मंगोलों का खाकान बन सकता। उसकी मौजूदगी में मेरे मुकद्दर में खाकान बनना नहीं लिखा। यहाँ तक कहने के बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए सरताक फिर कह रहा था,
मैं बख्ताई के बाद इन दोनों मुहाफिजों का बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा जो मिखाइल की बीवी को लेने के लिए दराए डान की तरफ गए हैं। अगर हम नक्सार के जरिए बरकाई का खात्मा कर दें तो जिस वक्त नक्सार बरकाई का खात्मा करेगी तो इसके साथ ही कलसार को भी मौत के घाट उतार देंगे। और फिर मैं अपने बाप से कहूंगा, चूंकि तुमने मिखाइल का खात्मा किया था जिसके जवाब में मिखाइल की बीवी नक्सार ने तुम्हारे भाई बरकाई का खात्मा कर दी, लेकिन मैं अपने चचा की मौत को बर्दाश्त न कर सका, इसलिए मैंने नक्सार को कत्ल कर दिया। मेरा बाप यकीनन इस फैसले से इत्तफाक करेगा और मेरी कारगुजारी पर खुश होगा। इस तरह हम बख्ताई और बरकाई का खात्मा करने के बाद इन इलाकों में अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रहेंगे। विलियम ने सरताक के इस फैसले की तायद की। फिर सरताक अपनी जगह से उठा और कहने लगा, देखो रात अब काफी हो चुकी है, मैं जाता हूं और अपने इन दोनों जानिसारों को बख्ताई के खैमे की तरफ भेजता हूं ताकि वो इसके मुहाफिजों का खात्मा करके बख्ताई के कत्ल किए जाने की इत्तला दें। इसके साथ ही सरताक अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर विलियम के खैमे से निकल गया। दोनों मुहाफिज भी उसके पीछे पीछे खैमे से निकल गए। खैमे से बाहर सरताक ने जो मुहाफिज फैलाए हुए थे वो भी सरताक के पास जमा हुए। जिन अशखास के जिम्मे सरताक ने अपनी बहन बख्ताई के कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम जाओ और अपनी कारगुजारी की इब्तदा करो। सुनो, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है इसे बारिश में बड़े अहसन तरीके से अदा किया जा सकता है, इसलिए कि बरसती बारिश में कोई तुम दोनों के कदमों के निशान नहीं देखने पाएगा। इसके साथ ही सरताक अपने दोनों मुहाफिजों को लेकर वहां से चला गया था, जबकि वो दोनों मुसल्ला मंगोल बड़ी एहतियात से खैमों के अंदर से गुजरते हुए बख्ताई को कत्ल करने के लिए उसके खैमे की तरफ जा रहे थे। अगले रोज का सूरज जब तुलू हुआ तो सराय बातों में एक कोहराम सा मच गया था और हर सू बातों की बेटी बख्ताई के कत्ल की खबरें उड़ने लगी थी। ये खबर सुनते ही बातों और बिरकाई दोनों तकरीबन भागते हुए बख्ताई के खैमे के पास आए। उन्होंने देखा कि खैमे से बाहर बख्ताई के दोनों मंगोल मुहाफिज मुर्दा पड़े हुए थे। उनके हुलकूम काट दिए गए थे। खैमे में खून से लथपथ बख्ताई की लाश पड़ी थी, उसका भी गला कटा हुआ था। इसके अलावा खैमे के ऊपरी हिस्से को जगह जगह से खंजरों से चाक कर दिया गया था और वहां से बारिश का पानी खैमे के अंदर जमा हो गया था, जिसकी वजह से कातिलों के पांव के निशानात नहीं देखे जा सकते थे। शायद कातिलों ने यह सब कुछ सोची समझी तजवीज के तहत किया था। बहरहाल खैमे के बाहर दोनों मुहाफिजों और खैमे के अंदर बख्ताई की लाशें पड़ी हुई थी। खैमे के चारों तरफ पानी खड़ा था और कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बख्ताई को खैमे के अंदर खून में लथपथ देखते हुए बातों का चेहरा चिता की आग और दहकते हुए आतिश फशां की सूरत इख्तियार कर गया था। उसकी आंखों में दुख के नगर जैसा इनकलाब बर्पा होकर रह गया था। दूसरी जानिब बरकाई की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। उसके चेहरे पर भी भंवर की गिरहें, जबर की धूल जोश मार रही थी, जबकि उसकी आंखों के अंदर सरकश और बेजंजीर जज्बे और मौत की अंधी चाप रक्स कुना थी। कबल इसके कि बातू अपनी बेटी की मौत पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कुछ कहता, इससे पहले ही बरकाई बोल उठा, मेरे अजीजो मोहतरम भाई, तू जानता है बख्ताई को मैंने अपनी सगी बेटी की तरह चाहा और वो मुझे बाप की तरह प्यार करती थी। मेरी बेटी बख्ताई के कातिल जो भी हुए, याद रखना मैं उनके हुलकूम काटूंगा, और अगर वो जमीन की तह में भी चले गए, बर्फानी सरजमीनों की पाताल में भी उतर गए, तो मैं उनका ताक़ुब करूंगा और उनके आज़ा काटूंगा। मैं उनसे अपनी बेटी बख्ताई का इंतकाम जरूर लूंगा। यहां तक कहने के बाद अजीब से अंदाज में बरकाई रुक गया। फिर वो राहिब विलियम और अपने भतीजे की तरफ सवालिया से अंदाज में देख रहा था। बरकाई के इस तरह देखने से वो दोनों हवाओं के नौहों, कत्लगाहों के मकरूज और जख्म खुर्दा जबान जैसे होकर रह गए थे। कबल इसके कि सरताक या विलियम में से कोई अपने जज्बात का इजहार करते हुए कुछ कहता, बरकाई की इस गुफ्तगू का जवाब देते हुए बातों कह रहा था, अजीज भाई तू ठीक कहता है, कसम नीले जावेदानी आसमान की, बख्ताई मेरी निस्बत तुमसे ज्यादा प्यार करती थी। बल्कि यूं जानू मैं ये ख्याल करने लगा था कि मेरी निस्बत वो तुम्हें ही अपना बाप समझने लगी थी। मेरे भाई तेरा दावा दुरुस्त है, कातिल जो भी हैं मेरे हाथों से बच नहीं सकेंगे। कसम नीले जावेदानी आसमान की, कत्ल में अगर मेरा बेटा भी मुलव्वस हुआ तो इसकी भी गर्दन काट के रख दूंगा, इसलिए कि बख्ताई मेरे जिस्म का हिस्सा थी। यहां तक कहने के बाद बातों रुका। इसके बाद वो फिर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कह रहा था, अपनी जात के बाद अगर मैंने किसी को सबसे ज्यादा चाहा है वो मेरी बेटी बख्ताई थी। इसके कातिल जहां भी जाएंगे मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। इस पर सरताक आगे बढ़ा और अपने बाप बातों के शाने पर हाथ रखकर कहने लगा, आपका कहना दुरुस्त है, मेरी बहन के कातिल जो भी हुए, जो भी इस कत्ल में मुलव्वस हुआ, वो हमारे खूनी इंतकाम से बच नहीं सकेगा। ये कोई मामूली कत्ल नहीं है, खाकान की बेटी को कत्ल किया गया है और इस कत्ल को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता।
बातों ने अपने बेटे सरताक की गुफ्तगू का कुछ जवाब न दिया था। जोशे इंतकाम ने उसने अपनी गर्दन गिरा दी थी। इसके बाद सब बख्ताई और उसके मुहाफिजों को दफन करने का एहतमाम करने लगे थे। दरियाए द्यातका और दरियाए कामा के दरमियानी मैदानों के अंदर वहशी बुद्धमत कालमक कबाइल के शहर गलोजी में एक रोज कालमकों का सरदार गुलमाश, सलाफों का सरदार सक्तूर और वहशी जंगारी कबाइल का सरदार बारखोला इकट्ठे बैठे किसी मौजू पर बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक मुसल्ला जवान ने अंदर आने की इजाजत चाही। इस पर कालमक कबाइल का सरदार गुलमाश, जो उस वक्त गुफ्तगू कर रहा था, रुक गया और आने वाले मुहाफिज को मुखातिब करते हुए उसे अंदर आने की इजाजत दी। मुसल्ला जवान अंदर आया, फिर गुलमाश को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, सलाफों के मरकजी शहर अर्जोम की तरफ से कुछ हरकारे आए हैं और वो कोई इंतहाई अहम पैगाम रखते हैं। गुलमाश शायद आने वाले के अल्फाज को समझ गया था। सक्तूर और बारखोला भी परेशान हो गए थे। फिर गुलमाश बोल उठा, उनमें से कुछ को अंदर लाओ। वो मुहाफिज बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद 2 अशखास उसके कमरे में दाखिल हुए। सक्तूर उन्हें पहचान गया, वो उसके अपने आदमी थे। उसने फौरन उन दोनों को मुखातिब किया, क्या बात है, क्या कोई हादसा पेश आ गया है? जवाब में आने वाले उन दोनों कासिदों ने सलाफों पर खरीम बिन मकरूम के हमलावर होने और 2 मुख्तलिफ मकामात पर सलाफों को बदतरीन शिकस्त देने की तफसील कह दी थी। ये वाक़यात सुनकर सलाफों के सरदार सक्तूर के पांव तले से जमीन निकल गई थी। गुलमाश और बारखोला भी परेशान हो गए थे। फिर सक्तूर ने आने वाले कासिदों को मुखातिब किया, ये हमलावर कौन है और क्या वो तादाद में इस कदर ज्यादा थे कि वो हम पर हमलावर हुए और हमारे शहर पर काबिज होकर बैठ गए और हमारे कबाइलियों को उन्होंने दरिया द्यात का अबूर करके भागने पर मजबूर कर दिया। उन आने वाले कासिदों में से एक बोल पड़ा, मालिक, उनकी जो थोड़ी बहुत तफसील है उससे तो यही लगता है कि वो लोग भी खाना बदोश हैं। जहां तक हमारे कुछ आदमी तफसील हासिल कर सके हैं उसके मुताबिक वो 3 कबाइल पर मुश्तमिल हैं। इनमें बाशकीरी, करगीज और मग्यार हैं। इस बार कालमक कबीले का सरदार गुलमाश बोल उठा, जहां तक बाशकीरियों और करगीजों का ताल्लुक है तो इन इलाकों में बाशकीरी और करगीज मुसलमान हैं। जहां तक मग्यारों का ताल्लुक है तो मग्यार इन इलाकों में बहुत कम हैं। वो ज्यादातर माजी के हमलों के दौरान मगरिब की तरफ हिजरत कर चुके हैं। फिर इतने मग्यार कहां से आ गए? और फिर उन्होंने साइबेरिया के इन इलाकों का रुख क्यों किया, जबकि वो जुनूब मगरिब में आबाद थे, बेहतरीन चरागाहों पर काबिज हो चुके थे? याद रखना, अगर इन तीनों कबाइल ने मुत्तहिद होकर साइबेरिया के इन इलाकों का रुख किया है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। गुलमाश जब खामोश हुआ तब जंगारी सरदार बारखोला बोल उठा, वजह कुछ भी हो, पर इन लोगों को हमारे इलाकों पर हमलावर होने की जुर्रत कैसे हुई? बहरहाल इनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं जाएगा। इन सब का हम कत्लेआम करेंगे। सलाफी कबीले का सरदार सक्तूर अभी तक गर्दन झुकाए बैठा था। इस मौके पर गुलमाश ने उसे मुखातिब किया, सक्तूर, क्या तुम्हारे जहन में बाशकीरियों, करगेजियों और मग्यारों के इस हमले की कोई वजह आती है? अपनी गर्दन को मुस्बत अंदाज में हिलाते हुए सक्तूर ने अपनी गर्दन सीधी की, फिर कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में इस हमले की एक वजह आती है। माजी में हमारे कबाइल और मग्यार आमने सामने रहते थे। ये मग्यारों का एक छोटा सा गिरोह था जो एक तरह से हमारे हमसाए थे। अरब ताजरों के आने जाने की वजह से इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस फेल को मैंने नापसंद किया, लिहाजा मैंने उन पर हमला कर दिया और उनका खूब कत्लेआम किया। मेरा दिल कहता है कि मग्यारों के जो लोग बचे होंगे उन्होंने मगरिब के मग्यारों को अपने साथ मिला लिया होगा। इस सिलसिले में बाशकीरियों और करगेजों से मदद तलब की होगी, इसलिए कि बाशकीरी और करगेज मुसलमान हैं, ताहम मगरिब के मग्यार मुसलमान नहीं हैं। मेरे जहन में एक और बात भी आती है, वो ये कि मंगोल जो मगरिब की तरफ हमला आवर हुए तो मेरा अंदाजा है कि मगरिब पर यलगार के दौरान उनके लश्कर में मग्यार भी शामिल हो गए होंगे और जब वो लौटे होंगे तो मग्यार भी उनके साथ आ गए होंगे और किसी न किसी तरह हमारे हाथों जिक उठाने वाले मग्यारों ने उनसे राबता कायम किया होगा और वो भी हमसे इंतकाम लेने के लिए बाशकीरियों और करगेजियों के साथ इत्तेहाद कर चुके होंगे। यहाँ तक कहने के बाद आने वाले हरकारों में से एक बोल उठा, मालिक, हमलावरों में जो मग्यार शामिल हैं हमारे साथियों ने अंदाजा लगाया है उनमें से अक्सर मुसलमान हैं, इसलिए कि उनके तौर तरीके मुसलमानों जैसे हैं, उन्हीं की तरह इबादत करते हैं। कासिद के इंकशाफ पर सक्तूर लम्हे भर के लिए परेशान हो गया था। फिर उसकी परेशानी को कालमक सरदार गुलमाश ने रफा कर दिया, इसलिए कि उसे मुखातिब करके वो कह रहा था, सक्तूर, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मग्यार, बाशकीरी और करगीज इत्तेहाद कर चुके हैं तो हम भी उनके मुकाबले में 3 कबाइल हैं, सलाफ हैं, कालमक और जंगारी हैं, और उन्हें हम ऐसी मार मारेंगे कि जिंदगी भर भुला नहीं सकेंगे। उनके किए की हम ऐसी सजा देंगे कि उस वक्त जो उन्होंने तुम्हारा शहर अर्जुम पर कब्जा किया तो वहां से हम किसी को भागकर अपनी जान बचाने की मोहलत नहीं देंगे। मेरे ख्याल में उठो, बारखोला, तुम अपने कबीले की तरफ जाओ और अपना लश्कर लेकर यहाँ पहुंचो।
जितने दिन तक तुम नहीं पहुंचते मैं यहां रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सक्तूर, तुम भी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ यहां से कूच कर जाओ और तुम्हारा शिकस्त खुर्दा लश्कर जो दरियाए दयातका को उबूर करके हमारे इलाकों में दाखिल हुआ है उसे दरियाए दयातका के बाएं किनारे रोक कर उस्तवार करो।